لوبم زندگی ہند بہار چانہ ستی چھ بے قرارس قرار چانہ ستی گناہ گار بچھس مے چھم وچ ندامت گناہ گار بچھس مے چھم وچ ندامت میں چھم با خدا بس وقار چانہ ستی. جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے سوچا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا. کشمیری میں ایک کہاوت ہے کہ کاکر تچھان پوت ہے چھان. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کیا آپ کی فیملی میں اور کوئی ہے آپ کے بعد جو شاعری کرتا ہو؟ پمپوش لڑ رہا ہے ایک جنگ زندگی سے. میں ہی نہیں، بہت سارے لڑ رہے ہیں. بالکل. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر لائیو. آج کے شخصیاتی شمارے کے ہمارے مہمان ہیں وادی کشمیر کے دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والے غلام علی پمپوش صاحب، جو کہ ایک شاعر ہے، ڈی ایس پی رہ چکے ہیں اور اب سیاست میں اپنا نام بنا رہے ہیں. آج ان سے گفتگو کریں گے اور ان کی نجی زندگی کے بارے میں چند لمحات حاصل کریں گے. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. میں پہلے گڈ مارننگ کشمیر کا بہت ہی مشکور ہوں، ان کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی سرخاب زہرا کا، جو مجھے ناظرین کے ساتھ بات کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. پمپوش صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ دور دراز علاقے میں رہتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس علاقے کو انٹروڈیوس کیجیے گا اور ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا ہے. ہم وادی کشمیر کے بارہمولہ علاقے میں رہتا ہوں، جو یہاں پٹن سے ہوتے ہوئے پھر بابا رشی کی جو زیارت ہے وہ ہمیں قریب ہے، 7-8 کلومیٹر دور. اس علاقے میں جو ہمارا گاؤں ہے اس کا نام ہے سونیم، یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں پڑتا ہے. جی، کس طرح سے آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہے؟ کیونکہ یہ علاقہ جو ہے ابھی بھی پسماندہ علاقہ ہے. اس علاقے میں تعلیم حاصل کرنا اور اس مقام تک پہنچنا کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ کو. کس طرح سے آپ نے کیا یہ سفر؟ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ہم تعلیم پڑھ رہے تھے 80s کا دور تھا. اس وقت انگلش میڈیم اسکول زیادہ نہیں تھے، بلکہ صرف سرکاری اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کرتے تھے. ہمارے یہاں گاؤں میں سونیم میں ایک پرائمری اسکول، وہاں سے میں نے داخلہ شروع کیا. اس کے بعد یال ہمارا پڑوسی گاؤں میں ہے 1 کلومیٹر دور، وہاں پہ ہم 8ویں جماعت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں تک گئے. اس کے بعد ہمیں 12 کلومیٹر، یہاں سے 6 کلومیٹر اور وہاں سے واپس 6 کلومیٹر 12 کلومیٹر شیر آباد کھور ہائی اسکول میں جانا پڑتا تھا. اور اس وقت پکی سڑکیں بھی نہیں تھی جب ہم یہاں سے جاتے تھے. اور ہمارے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کرتی تھی اور کیچڑ اتنا ہوتا تھا. جو ہمارے ساتھ لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی تھی، ہم ان کے بیگ بھی اٹھاتے تھے، پھر ان کو اپنے ساتھ لیتے تھے. بہت مشکلات میں ہم نے تعلیم کا شروعات کی ہے. اور یہ یہاں پہ اب اس وقت آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں گھر گھر پہنچتی ہے، اس وقت یہ دور نہیں تھا، بلکہ ہم پیدل جاتے تھے. جیسے میں نے بتایا کہ 6 کلومیٹر یہاں سے شیر آباد جو ہائی اسکول تھا وہاں ہم جاتے تھے اور وہاں سے 6 کلومیٹر پیدل آتے تھے. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ ایک شاعر بھی ہے، تو کس طرح سے آپ کی شاعری کی زندگی کا سفر شروع ہوا ہے؟ کس طرح سے آپ نے شاعری میں اپنا قدم رکھا ہے؟ مجھے بچپن سے جو شوق تھا وہ مطالعہ کرنے کا کافی شوق تھا. کتابیں پڑھنے کا مجھے کافی شوق تھا اور اخبار میں روزانہ پڑھتا تھا. اگر مجھے سری نگر سے اخبار لانا پڑتا تھا لیکن اخبار میں پڑھتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے سکولز میں بھی، جس سکول میں پڑھتا تھا، میں پرائمری اسکول کی بات کروں گا، وہاں بھی اگر ہمیں کسی وقت کوئی فنکشن ہوتی تھی اسکول کی طرف سے تو اس میں مجھے نظامت کرنے کا موقع ملتا تھا. اسی طرح پھر یہ سلسلہ ہائی اسکول میں بھی جاری رہا. اور باقی جو ہم نے ابراڈ میں یہاں سے ٹریننگ کرنے کے لیے گیا، پھر دلی میں ہمارے کورسز ہوا کرتے تھے، وہاں بھی میں جو وہاں پہ ہم پروگرام ہوتے تھے آل انڈیا لیول پہ، ان کو بھی میں پھر کنڈکٹ کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کا مجھے شوق ہوا کہ جس طرح اخباروں میں باقی شعراء کے کلام چھپتے ہیں، کب ہوگا کہ میرا بھی کسی اخبار میں آئے. تو سب سے پہلے پھر میں نے جب کوشش کی، میں متاثر ہوا ہوں رحمت اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آخری نبی ہیں جنہیں نجات دہندہ انسانیت کے نام سے جانا جاتا ہے. تو میں نے پہلا جو آرٹیکل لکھا وہ میں نے لکھا ریگستان عرب کا انقلابی رہبر. یہ میرا پہلا مضمون تھا جو میں نے اخبار میں، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب صبح میں نے آفتاب دیکھا، سری نگر ٹائمز دیکھا، مشرق دیکھا، تو اس میں میرا آرٹیکل چھپ چکا تھا، وہ پورا ہو چکا تھا. یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی، جب ہم کسی شعبے میں آتے ہیں، استاد کی ضرورت پڑتی ہے، فیملی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے،
कौन उस्ताद रहे हैं आपके और फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? फैमिली का अनफॉर्चुनेटली जब मैं 10वीं जमात में पढ़ता था तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। मैंने सोचा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन मैं मुताला करता रहा। जैसे आपने बताया शायर, मैं अल्लामा इकबाल शायरी मशरिक़ के किताबें उनके शायरी से काफ़ी मुतासिर हो चुका था, और इसके साथ साथ शहनशाह मरसिया निगार जो हैं शायर अज़म के नाम से जाने जाते हैं, मीर नीस, उनके मरसिया में पढ़ता था, और इन दोनों ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। और उसके बाद जब हम यहाँ देखेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ प्रेमनाथ शाद उनके शायरी में पढ़ता था, शाहिद बडगामी साहब, और इसी तरह से रहमान राही साहब, इसी तरह जो शायरी कश्मीरी महजूर उनका भी मुताला मैं करता था। तो रोज़ बरोज़ मेरा ये शौक़ बढ़ता गया। और जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, पुलिस डिपार्टमेंट जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पर भी हमारे नेशनल लेवल पे फंक्शंस हुआ करते थे। तो उससे पहले जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, जब हमारी नेशनल फंक्शंस हुआ करती थी, तो पुलिस डिपार्टमेंट को एंकर्स या कंपेयर्स वहाँ या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से लेने थे या रेडियो या दूरदर्शन से लेने थे। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझ में ये टैलेंट देखा, तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे डीजी लेवल के, उन्होंने मेरे इस टैलेंट की सराहना की। यानी कि जो बचपन की ख्वाहिश आपकी थी वो आपके प्रोफेशन में भी हो गई। और क्या, ये तो मैं समझा हूँ तो कि जिस चीज़ का मुझे शौक था वो पुलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ 24 आवर्स अपने सर्विस में रहना है, लोगों की खिदमत करनी है, किसी भी वक्त कोई कॉल आ सकती है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी मुझे ये मौका दिया गया, जो हमारे नेशनल लेवल के फंक्शन हुआ करते थे, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, पुलिस कमेमोरेशन डे है, ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस है, पासिंग आउट परेड्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, तो उनको मैं 22 साल कंडक्ट करता रहा महकमा पुलिस में। और इसके साथ साथ महकमा पुलिस में फिर एक कल्चरल विंग बनाई गई, टीम बनाई गई, जिसमें बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे डांसर्स या कलाकार उसमें शामिल हुए। और जब पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में एक कल्चरल टीम बनी, पुलिस कल्चरल टीम, उसकी मुझे जिम्मेदारी सौंपी, एज कल्चरल ऑफिसर मैं उसमें काम करता रहा। जो जम्मू कश्मीर स्टेट लेवल की टीम थी उसका मैं एज कल्चरल ऑफिसर रहा। और उसमें मुझे ये शौक़ मिला कि मैं उसमें फिर अपने पैट्रियोटिक सॉन्ग मैंने बनाया, वतन गुलशन वतन गुलजार यारो, उचित अतकुन बला बेमार यारो, इसको मैंने बाइलिंगुअल किया, वतन अपना है सबका आशियाना, करे कुर्बान इस पर जान यारो। और इसको फिर मैंने कंपोज किया, हमारी कल्चरल टीम ने इसको फिर तैयार किया। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वालों ने, जो हमारे मुनीर अहमद मीर साहब हैं, उन्होंने भी उसको तैयार किया। इसके साथ साथ फिर मैंने पुलिस का सॉन्ग भी बनाया, एक स्पेशल पुलिस सॉन्ग, जिसको हमारे ऑफिसर्स ने काफ़ी सराहना की, जिंदा रहे हमेशा अपना ये मुकाम, जम्मू कश्मीर पुलिस का है अपना एक नाम। और ये पुलिस का सॉन्ग इतना मकबूल हुआ, जब भी हमारी पुलिस फंक्शन हुआ करती थी फिर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारा वो पुलिस सॉन्ग चलता था, जिसको कल्चरल टीम ने फिर तैयार किया। इसके साथ साथ फिर नाते और मनकबत भी मैं लिखता रहा और उनको कंपोज भी करता रहा। जो आपने ज़िंदगी पुलिस में गुजारी है, पुलिस डिपार्टमेंट को जो आपने ज़िंदगी गुजारी है, कैसी ज़िंदगी थी? पुलिस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ आपने अपने परिवार को छोड़ना है, घर को छोड़ना है, अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आपने 24 घंटे लोगों के फलाह बहबूद के लिए मैसर रहना है। जैसे मैं आपको अपनी बात करूँगा, मुझे लद्दाख भी जाना पड़ा, और लद्दाख उस वक्त 8 महीने वहाँ रास्ता बंद रहता था। लेकिन क्योंकि मैं इस शोबे के साथ वाबस्ता था, मैंने वहाँ भी जो रेडियो लेह, वहाँ से मैं फोर्सेस प्रोग्राम करता था फिर, या शाम गज़ल करता था फिर, तो वहाँ भी मैंने एन्जॉय किया। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस महकमे में फिर ये प्रोफाइल मिलना, ये तो आपको मैं एक बात यहाँ पे बताऊं, या जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे कलमकार हैं, उनको कि मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत है। जब आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। यहाँ पे मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी आपसे कि कश्मीरी में एक कहावत है कि कॉकर तछान पूत है छान। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या आपकी फैमिली में और कोई है आपके बाद जो शायरी करता हो, जो आपका जो ये शौक़ है वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हो? डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि जिस तरह आपके घर में माहौल होगा तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश आपके बच्चे भी करते हैं, या आपके जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं वो भी करते हैं। मेरी बेटी है शराफत फातिमा उनका नाम
नाम है, शी इज़ रीडिंग इन ईरान में वो पढ़ रही है, और वहाँ से भी वो अखबारों के लिए लिखती है, और जो भी वहाँ पे उनके प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं। या मेरा बेटा है उसको भी है, और इवन मैं बताऊँ कि हमें 4-5 साल की बच्ची है इस वक्त, उमुल बनीन, वो भी एक एक शायर तैयार करती है और मेरे पास आती है, बाबा मैंने ये शायर बनाया। यानी कि जो आपने किया है, आपके बाद आपकी बेटी, आपकी पोती ये काम आगे ले जा रहे हैं। बहुत ही खुशी होती है कि जब आपको इस तरह से आप कोई काम करते हैं तो उसको दूसरे आपके लोग जिसके साथ आपको इंटरेस्ट है, ऐसा भी होता है कि आपके घर में आपको सपोर्ट नहीं मिला, आपके वालिद साहब चले गए थे, लेकिन अब आप है, आपकी बेटी आपका पैशन आगे ले जा रही है, लेकिन आप उनका सपोर्ट करें, ये भी एक खुशी होती है। डेफिनेटली खुशी होती है ना कि अगर मुझ में कोई हुनर है, अगर मैं किसी शोबे में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और मेरे बच्चे भी उसकी तरह मुतासिर हो जाएं, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुशी इसमें होती है इंसान को। पंपुर साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ अब आप सियासत में अपना नाम कमा रहे हैं, क्यों सियासत में क्यों आए? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं जहाँ भी रहता हूँ मुझे काम करने का शौक़ है। जैसे मैंने पुलिस में एक अलग शोबा तैयार किया, वहाँ पे कल्चरल शोबा मैंने तैयार किया, शायरी का शोबा मैंने तैयार किया। इसी तरह ये जो हमारा इलाका है ये दूर दराज इलाका है, और जब हम अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे इसको भी काफ़ी इग्नोर किया गया है। ये जो हमारी कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी के साथ हम वाबस्ता है, इसको भी काफ़ी इग्नोर किया गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा दूर दराज इलाका है, जिस तरह मैं अभी महकमा पुलिस में 40 साल लोगों की खिदमत करता रहा, तो मुझे अभी भी मौका है कि मैं लोगों की खिदमत, इस जो मुझ में ये हुनर है, जो इस मुझ में ये जज्बा है, जो इसमें मुझे ये शौक़ है, तो इसको मैंने पॉलिटिक्स में लेना है, ताकि मैं पॉलिटिकली अपने लोगों को पॉलिटिकली मैं अपनी आवाज़ बनूं, अपने लोगों की, अपने इलाके की, अपने कम्युनिटी की, और उन लोगों की जिनका कोई सहारा नहीं होता है। आपसे और भी बातचीत करना चाहते थे, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने काफ़ी शायर लिखे हैं, मनकबत लिखी है, नात लिखी है, तो क्या कोई ऐसा शेर जो आपके दिल के नज़दीक हो, जो आपको खुद पसंद हो? हाँ, हाल ही में मैंने एक नात लिखा है, तो जिसको मैं आपको और अपने नाज़रीन के नज़र करना चाहता हूँ। ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। लुबुम ज़िंदगी हुन बहार चानि सूती, लुबुम ज़िंदगी हुन बहार चानि सूती, छुवुच बेकरारस करार चानि सूती, गुनाहगार बुछुस मैं छम वुच नदामत, गुनाहगार बुछुस मैं छम वुच नदामत, मैं छुम बाखुदा बस वकार चानि सूती, मैं छुम बाखुदा बस वकार चानि सूती, मुन्ना चीज़ क्या कर बयान चानि शहरिज, मुन्ना चीज़ क्या कर बयान चानि शहरिज, इज़न चून म्यूलुम दोबारा चानि सूती। मुझे 2-3 बार मौका मिला है मदीना मक्का जाने का, इसी की अक्कासी मैं कर रहा हूँ। तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का करम है कि मुझे बार बार ये मौका मिल रहा है। मुन्ना चीज़ क्या कर बयान चानि शहरिज, इज़न चून म्यूलुम दोबारा चानि सूती, वुच मुराद दुह अस बरसान रहमत, वुच मुराद दुह अस बरसान रहमत, कुरुम वल्लाह सु दीदार चानि सूती, वो पंपोश करान रोज़ सुबह शाम अर्पण, वो पंपोश करान रोज़ सुबह शाम अर्पण, दुरूद व अज़कार सिर्फ चानि सूती, लुबुम ज़िंदगी हुन बहार चानि सूती, छुवुच बेकरारस करार चानि सूती। सुभान अल्लाह। इस वक्त आमद बहार का सिलसिला चल रहा है, दूर दराज मुल्कों से कश्मीर को देखने के लिए इस बहार के मौसम में लोग आना चाहते हैं, और हम उनका खुशामदीद करते हैं। आइए और देख लीजिए जन्नत बेनज़ीर कैसा है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक नज़्म लिखी है जिसका उन्वान है आमद बहार। ज़माना वक्त के हाथों से क्या सौगात पाता है, नया साल अब देखिए बरकतें क्या लेके आता है, सदा क्या आसमान से आ रही है गौर से सुनिए, सदा क्या आसमान से आ रही है गौर से सुनिए, खुशियाँ ए दिल ज़माना साल नौ के गीत गाता है, साल नौ को कहते हैं पीरो जवां खुश आमदीद, खलकत आलम क्या है विरद ज़बां खुश आमदीद, खस्ता दिलों को अब के कुछ तो करार आए। ये दो आया कलिमात हैं इसमें जो मैंने ऐड किए हैं। खस्ता दिलों को अब के कुछ तो करार आए, आए जो साल नौ तो लेके बहार आए, महके चमन हमारा अमन अमान बरसे, महके चमन हमारा अमन अमान बरसे, हिस्से में हर किसी का खिलता दयार आए,
महके चमन हमारा अमन व अमान बरसे हिस्से में हर किसी का खिलता दयार आए पंपोश लड़ रहा है एक जंग जिंदगी से। मैं ही नहीं, बहुत सारे लड़ रहे हैं। बिल्कुल। पंपोश लड़ रहा है एक जंग जिंदगी से मेरी दुआ है अब के कोई न हार आए महके चमन हमारा अमन व अमान बरसे हिस्से में हर किसी का खिलता दयार आए। माफ कीजिएगा, मैंने पहले ही कहा कि वक्त इजाजत नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे आपने शायर में भी और इस नज़म में भी पंपोश लफ्ज़ इस्तेमाल किया और मैंने इंट्रोडक्शन भी आपका पंपोश नाम से दिया। पंपोश क्या आपकी ज़ात है, तखल्लुस है, क्या है पंपोश? ये इट इज़ माई पेन नेम, ये मेरा तखल्लुस है। और पंपोश आपको पता है कि जो हमारा कौमी फ्लावर है, नेशनल फ्लावर जो हमारा है वो पंपोश है, लोटस। और ये पंपोश हमारे डल, जो हमारा खूबसूरत डल है, उसी में पिनपता है। बिल्कुल। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पंपोश रखा है। और पंपोश की जब हम वजाहत करते हैं तो इसमें आपको पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्वुर भी मिलता है। पंजतन पाक का जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है, जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, मौला अली अलैहिस्सलाम का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पंपोश अपना तखल्लुस रखा है। चलिए, शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे गुलाम अली पंपोश साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में चंद मालूमात हमारे साथ शेयर किए। कैमरा पर्सन सरताज अल्ताफ़ के साथ मैं सुरखाब ज़हरा, गुड मॉर्निंग कश्मीर, श्रीनगर के लिए।